Okay, so Bismillah Rahman Rahim, bachcho, we are going to start today's class as well again, and we are going to talk about again exo and endothermic reactions. और इसके अंदर हम आज दो और बातें करेंगे, उसके बाद कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम सीखे थे उनकी। और उससे पहले हम एक बात आज करेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ column over here for exo and endothermic, right? And you can see this, that one of the column is for exo and one of the column for endo, right? So exothermic reactions and endothermic reactions. So बच्चों, क्विकली मुझे आप लोग बताएंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकली कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? मैं पूछूंगा जैनब से। जैनब, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक बेटे? Yes, sir. In exothermic reactions, the heat energy is released out to the surroundings. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, गुड जॉब। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज टेल मी Marwa, what is the second definition of exo and endothermic? Yes, सिर्फ exo की बता लें। So the exothermic is the heat energy releases or the taken out to the surrounding, and the endothermic is the heat is absorbed or taken from the surrounding. वेरी गुड, जबरदस्त, गुड जॉब। यस, अब मैं पूछना चाहूंगा एक और बच्चे से, क्या उनको भी आता है ये सब कुछ? सो अनस उसामा, कैन यू प्लीज टेल मी वन मोर डेफिनेशन दैट वी लर्न इन द लास्ट क्लास अबाउट एक्सो एंड एंडो? Then in exothermic reaction, the energy is released, and when the energy is released into the surrounding, the temperature inside the okay, sorry, you have to tell me. Yeah, 1 second. I Yeah, just I could want to remember only the same one. I could remember all the right, same. that's fine, no issue, no issue at all. I just want to ask from Mujtaba Shahid ji. Mujtaba, can you please tell me another definition for exo and endo? One is energy release and one is second one is Mujtaba. Taken out. No, this is one is about energy release or absorb, and one more definition that we learned in the last class is, कौन बताएगा मुझे? अहमद बताना चाह रहे हैं जी, अहमद। Bond breaking and bond making. That's good. Bond breaking is That's endo. what I am asking for. Zabardast. Exothermic is bond making or breaking? Bond making. Bond And making. endothermic Zabardast. is Endothermic bond is breaking. bond breaking. Good job. Very good job. So these are the two definitions that we learned in the last class, right? Good job, bacho. Now, today we are moving towards something like temperature, and you need to keep remember, bacho, whenever you talk about exothermic, actually temperature of thermometer increases, right? You need to keep remember temperature on the thermometer rises. You need to keep remember this, bacho. And when you talk about endothermic reaction, so the temperature on the thermometer falls. You need to keep remember this difference. आमतौर पे बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं और भूल जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों को ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है थर्मोमीटर के ऊपर जब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो थर्मोमीटर होता है इट इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस। वो एक्चुअल में हॉटनेस मेजर करने के काम आता है, और जब वो हॉटनेस मेजर करता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि टेम्परेचर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट बच्चों? ये डिफरेंस खास करके आपने याद रखना है। और अब मैं यहाँ पर आपके लिए बना के भी दिखा देता हूँ। फॉर सपोज अभी मेरे पास एक इस तरह का कुछ थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना? ये मैंने बनाया थर्मोमीटर आपके लिए, ठीक है? कुछ इस तरह का आपके पास थर्मामीटर होता है, सही है ना? अब ये थर्मामीटर मेरे पास मौजूद है और इसके अंदर आप देखें फॉर सपोज रीडिंग मौजूद है इस तरह की। दिस इज फॉर सपोज इनिशियल रीडिंग, ये मेरे पास इनिशियल रीडिंग है, ठीक है ना? एंड दिस इज समवेयर लाइक इट इज 0, it is 10 for suppose, it is 20 for suppose, it is 30 for suppose, and it is 40. So you can see this, initially the temperature is what? It is somewhere 40 डिग्री सेल्सियस विदाउट रिएक्शन, और आप कह सकते हैं कि किसी इनिशियल पॉइंट के ऊपर द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। फॉर सपोज अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो इसका टेम्परेचर क्या आएगा? अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सो इट मीन्स कि जो हमने रिएक्शन किया है इट मस्ट बी बच्चों
एक्सोथर्मिक। ये आपने बस याद रखना है डिफरेंस, और ये बड़ी काम की चीज है। फॉर सपोज जो मैंने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर इसका राइज हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर इसका राइज हो गया, सो इट मीन्स कि ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हुआ, ये आपके पास हुआ एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर आपके पास बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, नोट्स में भी आपके पास आ जाए, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास फॉर सपोज एक एक्सपेरिमेंट या एक तरह की एग्जाम्पल हमारे पास, राइट। So this is 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. You can see this कि टेम्परेचर आपके पास राइज हो गया। जब आपके पास टेम्परेचर राइज हो जाएगा बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज, कौन सा होगा बच्चों ये वाला टेम्परेचर आपके पास रिएक्शन। अगर Exothermic. Rises एग्जामिनर exothermic. आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछता है एग्जाम में, ये एटीपी में आपके पास ये सवाल आ सकता है, which type of reaction is this? So बच्चों you need to keep remember when the temperature rises it's always exothermic reaction, right बच्चों। Yes, sir. और जब टेम्परेचर फॉल होगा, फॉर सपोज इनिशियल टेम्परेचर को हम यहीं रखते हैं, हम सिर्फ फाइनल वाले को चेंज कर देते हैं, इनिशियल वाला हम दोनों का फॉर सपोज सेम रखते हैं। तो अगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाए, टेम्परेचर अगर आपके पास फॉल हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो रिएक्शन हुआ है वो डेफिनेटली एंडोथर्मिक हुआ है। जैसे फॉर सपोज टेम्परेचर आपके पास कम होकर कितना हो गया, आपके पास इतना हो गया फॉर सपोज, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया, जितना भी कम हुआ बट कम हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये इतना हो गया आपके पास, तो आप याद रखिएगा कि ये फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स फाइनल। इनिशियल वही है दोनों के लिए, ये फाइनल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल के ऊपर आपके पास कितना काम हुआ, जैसे 0, 10, 20, 30, तो ये 30 हो गया। सो यू कैन सी दिस, अगर इस तरह का वो आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। Endothermic. एंडोथर्मिक। दिस इज क्वाइट सिंपल, आई थिंक आपको रीडिंग मालूम करनी होती है, रीडिंग भी वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट करके बताएं। तो रीडिंग मेरे ख्याल से 2 मार्क्स के लिए आपके पास फाइनल पेपर में आ जाएगी एटीपी के अंदर, और फिर कंक्लूड करने के लिए 1 से 2 मार्क्स के लिए आपसे वो कह सकता है। सो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन टोटल 3 to 4 मार्क्स का एटीपी में आ सकता है, एंड इट्स क्वाइट सिंपल आई थिंक, राइट बच्चों। Yes, sir. Yes, Sir. sir. एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू, ऑल क्लियर। Yes, sir. Yes, All sir. clear. Clear. ठीक है, तो आगे चलें फिर। Sure, sir. Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसको कर दिया एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस, सर क्वाइट इंपॉर्टेंट। जी बेटे। सर आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं जो आपने पिछला पढ़ा है, आई वाजंट अभी देयर। हाँ, हमने अभी तक कोई खास काम नहीं किया है, वैसे हमने सिंपल बस ये पढ़ा है कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन की वजह से हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग इट्स ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो एक एग्जांपल मैंने बच्चों को बना के दिखाई, यू कैन सी दिस कि अगर ये इनिशियल टेम्परेचर है समवेयर 40 और फाइनल टेम्परेचर आपके पास समवेयर 60 आ रहा है, सो यू कैन सी दिस द थर्मोमीटर इज एक्चुअली हैविंग rise in the reading. It means कि आपके पास जो भी reaction हुआ है it is exo, and if you just focus over here, if the final reading is going to be decrease or the temperature is going to be fall, so you can see this कि it must be an endothermic reaction, right? ओके थैंक यू। अब हम करने वाले हैं क्या, अब हम करने वाले हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स इन एग्जाम्स। ये बहुत काम की चीज है और बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट पता नहीं क्यों बच्चे इसको गलत बनाते हैं। अगर आप एक बार इसको सीख लें तो इसको गलत करना बनता नहीं है आमतौर पे, ये मतलब बहुत ईजी है, बट फिर भी शायद फाइनल पेपर के अंदर प्रेशर में बच्चे गलत कर देते हैं, बट ये बहुत ईजी है। लेट्स सी कितना ईजी है, देखते हैं। नाउ on the left hand side I'm going to draw exothermic and on the right hand side I'm going to draw endothermic बच्चों। So first of all you need to keep remember, जल्दी से मुझे बताएंगे definition, कौन बच्चा बताएगा मुझे, आलियाना बताएंगी। आलियाना can you please tell me the definition of exothermic बेटे। आलियाना can you please tell me the definition। ठीक है, मारवा बताइए।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? Sir. Yes, sir. जी बताइए मारवा, कैन यू प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक जो भी आपने बताई थी? Yes, sir. Sir, the heat energy releases or taken out to the surrounding. दैट्स गुड। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आपके पास किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट, दिस इज हीट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट। इफ यू जस्ट लुक एट इन द किचन, तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि आपके पास किचन में आपकी मदर जो है मीथेन गैस को कंबस्ट कर रही होती है, राइट? सुई गैस या सुई सौदर्न गैस जो हमारे घर में आती है, या जो जो खाने बनाने के लिए हम लोग गैस यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। जब मीथेन गैस को हम कंबस्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। बट आप जरा मुझे बताएं कि अगर फॉर सपोज आपकी मदर घर में खड़े होके किचन में बिरयानी बना रही हैं, तो क्या बिरयानी बनाते वक्त आपकी मदर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत है या हीट की? Heat की. हीट की जरूरत है। तो इसका मतलब Sir, heat. मीथेन की जो कंबशन हो रही है उससे एक प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एक बन रही है वाटर, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत की जो चीज है किचन में राइट नाउ, वो क्या है? आपके पास हीट। सो हीट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन, सेम एज इट इज फॉर कार्स, फॉर यू कैन से दैट लॉरीज एंड ट्रक्स, फॉर रेल और रेलगाड़ी जो होती है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रेन बोलते हैं, हाँ ट्रेन। एंड फॉर एयरक्राफ्ट, वट एवर यू आर गोइंग टू बी यूज, वहां पर आप जब कंबस्शन कर रहे हो, तो कंबस्शन हम कर क्यों रहे हैं? कंबस्शन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हम कंबस्शन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन इज हीट, और हीट एनर्जी की वजह से वहां पर इंजन चल रहे हैं, हीट एनर्जी की वजह से यहाँ पर खाना बन रहा है। सो हीट एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट of exothermic reaction. So bachcho, can I write exothermic reaction in this way, if you don't mind, that reactant converted into the product, along with this, one of the main thing which is heat is going to be released, right? And this is actually one of the product, right bachcho, or not? Yes, sir. इसी तरह से can I write for endo as well? For endothermic reaction, heat is going to be absorbed. It means this is one of the reactant and product is going to be formed, right बच्चों, or not? Yes, sir. लिख सकता हूं Yes, इसमें? sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं फिर हटा देता हूं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो। लिख सकता हूं ना? Sir, again explain, sir, please. जी अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तभी प्रोडक्ट आपके पास बनती है। इट मींस रिएक्टेंट साइड पर आपके पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी यकीनन, वरना उसके बगैर रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे। इसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से एनर्जी को भी आप वन ऑफ द प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कंबस्शन इक्वेशंस एंड द कंबस्शन रिएक्शंस फॉर डिफरेंट यू कैन से दैट इन आवर सराउंडिंग, राइट? Yes, ठीक sir. है, Thank you. अब देखिए, अब बेसिक मैथ्स लगाते हैं, ठीक है? बेसिक मैथ्स अगर आप लगाएंगे तो जरा देखिए बच्चों, द सम ऑफ दीज टू, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट। बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? Product. बेटा सम ऑफ दीज इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट, तो कौन सा वाला बड़ा हुआ? Reactant. Reactant. रिएक्टेंट। So you can say Yes, that sorry, यहाँ reactant. पर रिएक्टेंट के पास मोर एनर्जी मौजूद है। अब यहाँ पर बताएं किसके पास ज्यादा मौजूद है? राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट Product. की, Product. शाबाश। तो The यहाँ पर product. मोर एनर्जी प्रोडक्ट के पास मौजूद है। क्या बात है, आधा रिएक्शन खत्म हो गया। बस यही आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, और ये बहुत जरूरी चीज थी। अब हम देख लेते हैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। सो this is energy profile diagram. We have two axes, right? And one of the axes आपके पास याद रखिए बच्चों, on this axis we always have energy, right? On this axis we always have energy, and on this axis, that is x-axis, we have reaction pathway. रिएक्शन पाथवे मीन्स जब हम रिएक्शन करते हैं तो पहले हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं। इट मीन्स अगर मैं इसका दो हिस्से करूं तो इस साइड पर रिएक्टेंट लिखूंगा और इस साइड पर प्रोडक्ट लिखूंगा, राइट बच्चों? Yes, sir. अब मुझे बताएं Yes, sir. किसकी एनर्जी ज्यादा है एक्सो में, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? Reactant. इट Reactant. मीन्स रिएक्टेंट वाला ऊपर आएगा और प्रोडक्ट वाला नीचे आएगा, राइट और नॉट? Yes, 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 sir. sir. सेम एज इट yes, इज sir. इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वन ओवर हेयर, तो बताएं रिएक्टेंट वाला ऊपर आएगा प्रोडक्ट वाला?
Product. So Product. it seems like this, right बच्चों, or not? Yes, Yes, sir. sir. Is that clear every one of Yes, you? sir. तो बस यही Yes, चीज sir. हमें याद रखनी है sir. बस, Yes. और कुछ भी याद नहीं रखना हमें। इस पूरी डायग्राम में हमें बस यही याद रखना है। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ग्रेटर एंड प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेसर होगी। एंड इफ यू हैव फॉर सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शन तो उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी बच्चों कैसी होगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा एक्सोथर्मिक में और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है? Yes, सर sir. हम लोग बार बना सकते हैं, बार चार्ट क्या बना सकते इसमें, हैं? बार चार्ट बना सकते हैं इसमें। आई एम नॉट गेटिंग, क्या पूछ रही हो आप? सर आपने जो अभी ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई है कि जो रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे, तो हम लोग उसको बार चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रही हैं। He's talking about a bar chart graph. नो, यही ग्राफ है, इसी को इसी तरह से ही बनाना है हमें हमेशा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप किसी और ग्राफ के अंदर। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सही है? ओके सर जी बेटे। सर एक इधर कर्व आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, एक कर्व आता है जिसमें हम क्या कहते हैं एंथैल्पी और कुछ ऐसा एक दूसरा मतलब एनर्जी वाला हम वो उसको काउंट जी करते सर, हैं। एक्टिवेशन इमेज में रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। जी अभी तो बना रहा हूँ ना, मैंने कंप्लीट तो नहीं किया अभी। तो बस मैंने आपको ये बताया कि आप 1 मार्क कैसे ले सकते हो। अभी 1 मार्क लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ नीचे है और कहाँ ऊपर है। अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन देखा कि एक्सोथर्मिक है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट नीचे बनाओगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का जो आपके पास साइड है उसमें आप ऊपर बनाओगे उसको, इससे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? अभी फर्दर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कैसे आएंगे वो भी हम करते हैं। ठीक है? नाउ आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस, राइट? और देखें मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, और जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो रिएक्शन कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम बन गई। ठीक है ना कुछ मैंने रिएक्टेंट को एनर्जी दी होगी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, और वो कुछ इस तरह से फिर हमारे पास सामने आया। ठीक है भाई? तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट। नाउ यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद होती हैं जिसको हम बोलते हैं, एक चीज को हम बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? इंथैल्पी चेंज। और इंथैल्पी चेंज अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो हमने किया था, और एनर्जी डिफरेंस था एक्चुअली। वो क्या था बच्चों? वो एनर्जी डिफरेंस था। क्या था बच्चों? एनर्जी डिफरेंस। अब मेरे ख्याल से अगर मैं आपको कहता हूं कि एनर्जी डिफरेंस होता है एंथैल्पी, सो इट्स क्वाइट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो एनर्जी है दिस इज द एनर्जी फॉर प्रोडक्ट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट मस्ट बी एंथैल्पी चेंज, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Same as it is for here as Yes, well. sir. This is the energy for reactant and this is the energy of product. So this must be the difference. और ये क्या कहलाएगा फिर आपके पास? एंथैल्पी चेंज, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, बट sir. वन मोर थिंग जो कि आपको यहाँ पर आपको मार्क दे के जाएगी वो है हेड ऑफ दिस एंथैल्पी चेंज। आपने याद रखना है हेड ऑफ द एंथैल्पी चेंज और द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये हमेशा प्रोडक्ट की साइड पर होगा। तो आप याद रखें कि नीचे प्रोडक्ट है सो द हेड मस्ट बी डाउनवर्ड, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर है तो हेड शुड बी अपवर्ड। अगर हेड गलत बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा बच्चों, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Any problem to any one of you? Is that clear? यस सर, यस सर, थैंक So यू। Yes, sir. I am just writing Sir, it what over is here as head? well. Head means arrow का head। ये जो मैं arrow का head बनाया ना उसकी बात कर रहा हूँ, head। ठीक है? और head शो करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ द हेड इज डाउनवर्ड इट मींस आपके पास ये जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इफ द हेड इज गोइंग टू बी अपवर्ड इट मींस द रिएक्शन इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग एनर्जी, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है? हमें लिखना नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, बस आपको बता रहा हूँ। सो यू कैन से दैट हेड ऑफ द एरो शुड बी टुवर्ड्स प्रोडक्ट। हेड ऑफ द एरो हमेशा आप इसको रखोगे टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. सर नाउ वन मोर सर थिंग वी हैव। जी बेटे। सर इसमें ये क्या लॉजिक है कि जो है ना एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे है देखो और ये एंडो लॉजिक में ये प्रोडक्ट। लॉजिक हमने यहाँ पर ये इसी की बात की है हमने कि आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी क्या करते हैं बेटे? वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वाइल इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इट मींस एंथैल्पी इज या एनर्जी डिफरेंस इज एक्चुअली या एनर्जी और हीट इज एक्चुअली वन ऑफ द रिएक्टेंट आपके पास इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब आप अब यहाँ देखोगे इस तरह से गौर करो जरा कि यार प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है प्लस जो एनर्जी प्रोडक्ट की है, ये दोनों किसके बराबर हैं? रिएक्टेंट के बराबर। इसका मतलब जो रिएक्टेंट था उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, ज्यादा एनर्जी थी, इसीलिए उसने उसको प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर दिया, कुछ एनर्जी प्रोडक्ट को दी थी, और जो एनर्जी फिर भी उसके पास एक्सेस बची वो रिलीज हो गई। इसका मतलब एनर्जी किसके पास ज्यादा है? रिएक्टेंट के पास। इसीलिए रिएक्टेंट। वाई एक्सिस के पास एनर्जी है, आप देखें वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लगाया है, तो इसीलिए हमने रिएक्टेंट को ऊपर बनाया है, ठीक है। All right, so we have one more thing to display on this graph बच्चों, and that is considered as activation energy. क्या कहलाती है बच्चों ये? Activation energy. And you all need to keep remember the definition for this, and this is actually the minimum amount of energy. This is the minimum amount of energy required to start any reaction. ठीक है बच्चों, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यानी कि अगर फॉर सपोज मुझे रिएक्शन कराना है, इतने ज्यादा गैस को मुझे बर्न करना है, लेकिन उस गैस को बर्न करने के लिए मुझे एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर सामने रखना पड़ती है। जो छोटी सी एनर्जी आप दे रहे हैं या थोड़ी सी एनर्जी जो आप दे रहे हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट को, वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। सो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एंड जब ऑलवेज पॉजिटिव है सो हेड हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड, राइट बच्चों। हेड ऑफ द एरो इज ऑलवेज अपवर्ड, राइट एवरीवन। यस सर। सो यू कैन से दैट कि अब मैं Yes, sir. इसको भी बना सकता हूं। अब देखें इस डायग्राम के अंदर मैं इसको भी बना सकता हूं। आई टोल्ड यू दैट ये हमेशा रिएक्टेंट को प्रोवाइड की जाएगी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले। जब आप प्रोवाइड करें इसका मतलब कि रिएक्टेंट को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड द हाईएस्ट पीक, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक मतलब आपने जितनी एनर्जी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड की। सो दिस डिफरेंस is going to be considered as activation energy, and the head is always upward because it's always positive, right everyone? सर फिर हम ये कर सकते हैं जो एक्टिवेशन Yes, एनर्जी sir. जिसका जो हेड है वो बस पीक पे होना चाहिए, लाइक उसके जी पीक के डायरेक्शन में होना चाहिए। हमेशा, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंस भी तो याद रखना है। देखो इसमें डिफरेंस थोड़ा सा चेंज है। अगर आप इसका डिफरेंस देखते हो तो यहाँ डिफरेंस आपके पास यहाँ से लेकर हाइट तक है, तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये बड़ा आपके पास डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक में दिस इज अ बिट चेंज, एंड एंडोथर्मिक में अलग है, एक्सो में अलग है। तो इसलिए बस आपने ये याद रखना है कि रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो सर एंडो का डिफरेंट है पूरा, लाइक एक्टिवेशन एनर्जी वो मतलब नीचे से शुरू होती है ऊपर तक, किस वहां वजह पे वो से? मिडिल में शुरू होती है। इसी वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस इतने फीजिबल नहीं होते, इतनी आराम से नहीं होते। अगर आप रिएक्शंस को देखोगे, अगर अपने आसपास होने वाले रिएक्शंस को देखो, लैब में जाके देखो, अपने इंडस्ट्रीज में जाके देखो, आप कहीं पर भी जाके देखें, जो रिएक्शन सबसे ज्यादा हो रहे होंगे वो सारे एक्सो होंगे, बिकॉज दे आर इजी, वो जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम एनर्जी वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं। इसलिए अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एंडो में देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि जो चीज आप बना रहे हैं उसको आप एनर्जी दे के बना रहे हैं, अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी रखकर स्टेबल नहीं रहता। इस वजह से इट्स अ बिट डिफिकल्ट रिएक्शन, और ये बहुत कम देखने को मिलता है आमतौर पे आपको, ठीक है। तो स्टेबल कैसे, मतलब इट्स लाइक हाईली रिएक्टिव? नहीं, जिसकी एनर्जी कम होती है ना वो ज्यादा वो होते हैं आपके पास, स्टेबल होते हैं, ओके सर। ठीक है। बट खैर है, आपको इस बारे में नहीं जानना, मैं आपको वैसे ही बता रहा था, सही है। आगे चलें। एक और बात जो कि हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है कैटलाइज्ड रिएक्शन। एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है आपके पास? कैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी कि अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट इज एक्चुअली वन ऑफ द सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो फॉर सपोज अगर मैं यहाँ कैटलिस्ट लिखता हूँ तो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। ये क्या करते हैं?
रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और करते कैसे हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने की, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, उस अमाउंट को कम कर देते हैं। इस वजह से रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे वो बोले कि यू आर यूजिंग कैटलिस्ट ओवर हेयर, अब जरा बताइए कि आपके पास कैटलिस्ट स्टार्ट करने के बाद रिएक्शन कैसा होगा। सो आप इसको इस तरह से बना के दिखाएंगे। देखें, इसको आप डॉटेड लाइन से थोड़ा सा फोकस से पहले, आप थोड़ा सा पहले इसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे। ठीक है भाई बच्चों, इसको थोड़ा सा पहले आप घुमा देंगे। ये याद रहे कि प्रोडक्ट से नीचे मत ले यस सर जाइएगा, प्रोडक्ट से ऊपर ही रखिएगा इसको। नाउ सो ओके दिस सर। डिफरेंस is going to be considered as what? Activation energy, but this is for catalyzed reaction. And over here, this is actually the activation energy, but this is for catalyzed reaction. Right, बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Any problem to any one of you? So you can ask. फिर हम कुछ No, sir. सवाल करते हैं इसके। Everything is clear? Is that quite simple? Yes, sir. चलो तो फिर इसके कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं क्या हमें ये बात समझ में आ गई है या नहीं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्या बच्चों, आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि आपने याद जो रखनी चीज़ है वो क्या क्या रखनी है कि आपके पास एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट नीचे होगी, एंडो होगा तो प्रोडक्ट ऊपर होगी। ये आपने याद रखना है सबसे पहली बात। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस इंथैल्पी चेंज है, और रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। प्रोडक्ट और एनर्जी, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, वो याद रखिए। देखें, अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ और या मैं कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंथैल्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है खाली कैटलिस्ट यूज करने से, और कुछ नहीं होता। बस आपने याद रखना है, कैटलिस्ट ऐड करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी कम या बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना? प्रोडक्ट बढ़ेगी ना, कलर चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दैट्स इट। और इंथैल्पी चेंज पे इसका कोई असर नहीं है। ठीक है, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि एंडोथर्मिक में सारे हेड तो ऊपर ही होंगे, एक्सो में आपके पास इंथैल्पी वाला हेड नीचे होगा। बाकी ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी, मेरे ख्याल से आप सारे एमसीक्यूज बहुत इजीली कर सकते हो। चलो देखते हैं, हम सिर्फ यही वाले थैंक यू सर एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, here we have one question, and the question is saying the diagram shows an energy profile diagram for the chemical reaction both with the and without catalyst. Which energy change is the activation energy for catalyzed reaction? Just look at over here, for catalyzed reaction, यानी कि they are asking for when you're using catalyst, what is the activation energy? जल्दी से बताइए बच्चों, what should be the answer? A, B, C, D. B. B. B for ball, right? बी First of Yes, all, you sir. need to keep remember that the reactant and highest peak का जो distance होता है, it's always activation energy, the simpler one. And अगर आप इसका catalyst use करते हो तो definitely ये आपके पास क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो it must be activation energy for catalyzed reaction. So the right answer would, this question must be B. Right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलें इस वाले को देखते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बताएं बच्चों, कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है? Sir, sorry, what was the answer for the previous question, B? यस, इट्स बी। Okay, sir. यस, आई एम आस्किंग फॉर दिस वन। इसका आंसर क्या होगा? सर ए। इट्स ए फॉर एप्पल, राइट? यस। So just look at over here, the energy profile diagram for the reaction is shown, and they're asking which statement is correct, right? So we can see this, the activation energy for the reaction is H3 minus H1. Is that right or not? Yes, highest peak, and this is reactant. So this is the difference, and we can see this H3 minus H1 will give you this difference. Absolutely right. A would be the right answer. And they are saying the activation energy of the reaction is H3 minus H2. Definitely not. ये आपके पास difference activation energy नहीं है, right बच्चों? And then they are saying enthalpy change is H1 minus H2.
So H1 minus H2 देखें, अगर if you are minus H1 minus H2 अगर आप करेंगे तो it means कि आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा, and this is endothermic reaction, so enthalpy change should be positive, right बच्चों? Yes, sir. All right. Yes, sir. चलिए, so let's move on towards the next question, and it must be for energy profile diagram. And here we have this question. क्या कहता है बच्चों? This question is saying that for suppose we have the energy profile diagram representing a chemical reaction carried out both with and without catalyst. What is the enthalpy change for the catalyzed reaction? Yes, बच्चों, for the catalyzed reaction. B for ball. Cat- B for ball, bete. I Ashleila. guess. All I right. guess, sir. All अगर right. आपको मतलब D. Sir, B. is it D? Is that B or is that B? Is that B? It's the only answer is B, because you can see this. This is 100 and this is 50. So when you talk about the difference, so you can see this. This is 100 minus 50 definitely will give you 50. अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता one more answer like plus 50, so it would be you can say that a chance for you जो आप गलत कर सकते थे. Otherwise मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अलावा कोई इसमें गलत करने का चांस था. हाँ, this is the product downward, so downward product में enthalpy is always negative, so this is the right answer. but sir इसमें like लिखा है catalyze reaction, तो हाँ, उसका वो कुछ आपको मतलब तंग करने के लिए, just for the twist, right? And Makes we know sense. that there is 100 no seconds. effect on Sir, if enthalpy we during catalyzed reaction. minus, Minus 50. sir, if we subtract the 100 from 50 from 100, so it's give us 50. So why they write minus 50? Yes, you need to keep remember for this, Bitimava, that whenever you are talking about exothermic reactions, so energy is releasing and enthalpy change is always negative. We talked about this in the last class, right? That's why we need to place negative sign over there, right? Okay, sir. All right, so I think this is also one of the very simpler question over here. Again, the diagram shows the energy profile diagram for the chemical reaction. The energy changes are label X and Y. Which statement about the reaction is correct? Yes, bacho, what should be the right answer? I think it is quite simple. The reactant highest placed must be activation energy. This must be enthalpy. What should be the right answer? D. B for ball. Yes sir, exothermic है, endo होता तो वो नीचे start होता वो activation का. Very good. So the right answer is D for doll. The reaction is actually exothermic because the product is having lesser energy. Good job. Very good. All right. So here we have one more question about enthalpy change. You can see this, bacho. This is the question we have. The question is saying that nitrogen monoxide is an atmospheric pollutant. This is formed in car engines by the reaction of nitrogen and oxygen. You can see this. The most important thing is this. You can see this. It is showing you positive enthalpy change. It means this must be endothermic reaction. So they are asking which diagram represent the energy profile diagram. So you can easily find it out कि पहले तो आपके पास ये right answer हो सकता है या ये हो सकता है. They are not absolutely right answers, right, बच्चों? जी. So we know that endothermic है, so activation energy और enthalpy change दोनों ही positive होंगे, and the head of both should be upward. So it means this is the 100% right answer, and this is wrong because of enthalpy change. Right, everyone? Yes sir. So you Sir, can could you see this. repeat what you explained? Yes, I told you that whenever you talk about endothermic reaction, so the energy of product is always higher. So the right answer may be A or B, right? Yes, sir. But if you see the charges, so you can see this, the head of both of activation energy and enthalpy are upward. It means both are positive. And this is the right thing for endothermic reaction because activation is always positive and enthalpy is also positive for endothermic. And over here, this is showing you the negative charge of enthalpy, which is for exo, not endo. Right, bacho? So Yes, 100% right Yes, answer sir. is A.
जी बेटे, सर जी जी, सर एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव रहेगी ना? पॉजिटिव भी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी आसान है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑन द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन? यस बच्चों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? B. B. B for ball, right? Yes, sir. B. We know that Yes, sir. whenever we are using activation, energy is going to be decreased when we are going to use what? Catalyst. जब भी आप catalyst use करते हो, activation energy कम हो जाती है, तो right answer can be A और B. C और D तो आंसर नहीं हो सकते, absolutely not. और enthalpy change को कोई असर नहीं होता, इस वजह से the right answer would be B. Okay, then the next question is 16, and the question number 16 is saying the energy profile diagram for the forward direction of a reversible reaction is shown. They are asking which rock correctly shows both the sign of activation energy and the type of enthalpy change for reversed reaction. But so you need to see this. This is very important. Reversed reaction. Yes. What should be the right answer? I guess D. Just look at over here. This is the forward reaction, right? When you are moving like this is the forward reaction. So what should be the reverse reaction? Definitely this, right, bacho? So if you are going back, it means this is reactant and this is product. So when product is having greater energy, it means the reverse reaction must be endothermic. And when you talk about endothermic, so the activation energy is positive and the reaction is also endothermic. So the right answer would be C. Right, bacho, or not? Yes, sir. Yes, All sir. right. But sir, activation energy की sign change नहीं होगी. No, activation energy is all the time positive, bete. सर Right? इस एमसीक्यू में तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते ना ए नेगेटिव। और बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, all right, question number 17. This question is saying the energy profile diagram shows the pathway of the reaction with and without catalyst. Which energy change is the activation energy for the catalyzed reaction? I think हमने कर लिया ये. What should be the right answer? It's B. B for ball. B. Sir, Right? B. B for ball. ये हमने सबसे पहले किया था मेरे ख्याल से. ठीक है, so you all can see there's a lot of questions are there and all are very easy peasy questions for us. तो मेरे ख्याल से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं easily. तो जरा जल्दी से बता दें फिर इसका आंसर. Which reaction profile shows the fastest exothermic reaction? जल्दी से बताइए, fastest exothermic reaction कौन सा है? C. Which one? सर C. बी तो नहीं हुआ? No, not सर at B all बेटा, ये इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, तो B, this B. must be endothermic Sir, ना. B. 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 सर This B must Sir, be B. B for ball. You can see this. एक तो प्रोडक्ट नीचे है तो एक्सो हो गया, प्रोडक्ट नीचे है तो एक्सो हो गया. When the difference of reactant and highest peak is greater, it means it requires greater energy to start, right? And the difference between reactant and highest place is lesser, it means it can start quickly. So this is faster, right? And this is slower. Yes, sir. Is that clear, बच्चों? Yes, ठीक. sir. All right, ठीक हो गया. तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस. अगेन वही क्वेश्चन दोबारा घूम फिर के हमारे सामने आ जा रहा है. चलिए, an endothermic reaction has an activation energy of X. Which diagram represent the energy profile diagram for this reaction? बताइए. Absolutely, this is wrong. This is wrong. तो बच्चों बताइए, what should be the right answer? D or A? I think it's A. सर A, सर A. Sir, This A. is A, because we know that whenever we talk about activation energy, it's always from reactant to the highest peak. So this is the right answer, because this is wrong, because this is not the activation energy. Right, बच्चों? Sir, A में मतलब वो full downward से नीचे से full down से ऊपर नहीं जाएगी, lowest से highest peak. Lowest से या highest क्यों reactant जाएगी? से नहीं, या reactant से reactant से highest जाएगी start ना. होगी और peak से. Okay, हाँ ना, sir. तो देखो reactant से start किया उसने. Activation energy हमेशा reactant से start होती है.
Sir, can you please explain the previous question again? Yes, it's quite simple, beta. You can see this. They are asking for which reaction is endothermic. So Sir, we know इससे भी that पहला वाला। इससे भी पहला वाला ये 37 अभी हमने ये वाला. जी सर 36। So you can see this bit. 36 is saying which one is the fastest exothermic reaction. So exothermically, you need to know that that product should be downward, right? तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, B और D. ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो प्रोडक्ट ऊपर है तो ये एंडो है, ये दोनों एंडो हैं, राइट? यस सर। तो फास्टेस्ट रिएक्शन वो होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. तो यू कैन सी दिस लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी. तो जिसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको रिएक्शन को स्टार्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा ना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी तभी तो जाके रिएक्शन स्टार्ट होगा. ओके सर, थैंक यू। All right. So let's move on towards the next question. And the next question is, here we have 41. The energy profile diagram for a chemical reaction is shown. Which statement is correct? Yes, bachcho. My correct, bachcho. What is the correct answer? Taha keh rahe hain it's B. X represent the B, sir. activation energy. X Sir, B. represent the activation energy, and this is the right answer because this is reactant से highest peak. So this is the activation energy. Absolutely right. Good job. So you all can see this how easy this chapter is, right, बच्चों? Yes, sir. यस Now सर। just look at over here, बच्चों. We have one question. हम उसको भी solve कर लेते हैं. देखिए जरा. The question is saying what? Just look at over here. The question is saying that the chemical equation for the complete combustion of ethanol is shown. Just look at over here. Combustion. क्या लिखा हुआ है बच्चों? Combustion. So combustion means it is going to release the energy. Whenever they are going to release energy, just look at over here. They are releasing energy. So whenever they are going to release energy, it must be an exothermic reaction. So whenever you talk about exothermic reaction, bachcho, the energy of the product should be downward, and this reaction is going to be like this, right, everyone? Yes, sir. And you can see this. They need to show the product Yes, and sir. overall energy change. So overall energy changes reactant and product ka distance, right? Arrow hamesha product ki side. This is enthalpy change, right? And also one thing, the product is carbon dioxide and water, right, bachcho? 3 marks. Wow, itna easy question, 3 marks. ठीक है भाई? And they're asking what X is showing. So definitely it is activation energy, right, बच्चों? Yes, sir. So you all can see this. This question is quite simpler. These MCQs are very simpler. And this one more thing that we need to discuss is the energy difference. चलो आओ energy difference के बारे में बात करते हैं. So कभी कभार पेपर में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चों, that state and explain in terms of bonding and in state and explain in terms of bond making and bond breaking. मुझे पता नहीं क्यों ionic bond याद आ गया. Bond making and bond breaking. State and explain in terms of bond making and bond breaking why the reaction is going to be endo, why the reaction is endo, or why the reaction is going to be exo. So बच्चों याद रखिए कि अगर वो आपसे ये सवाल पूछता है तो मैं आपको फ्रेम करके दे रहा हूँ, आपने यही लिखना है, इसके अलावा आप कुछ ना लिखिएगा. मैं आपको पहले शो ऑफ भी कर देता हूँ कि ये मैंने क्यों कहा और मैंने क्यों किया, ठीक है ना? तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके बारे में इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है? Just look at over here बच्चों. For suppose I have few reactions over here. मैं आपको एक reaction दिखा रहा हूँ. Like I have N2 plus 3H2 gives you 2NH3. This is one of the reaction I have, for suppose. And I suppose this must be forward reaction. And backward reaction definitely the decomposition of ammonia. So हम दोनों reactions की क्या निकालते हैं बच्चों? Enthalpy change निकालते हैं, ठीक है? मेरे पास डेटा बुकलेट है, मैं एनर्जी देखता हूँ. नाइट्रोजन के बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कितनी है? 945. ये तो मुझे याद हो गई है करा करा के. हाइड्रोजन की भी 436 थी आई थिंक. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली की कितनी है वो मुझे देखना पड़ेगी. सही है, अभी देख लेते हैं.
ओके, कहाँ गया? यस, डेटा बुकलेट। तो बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है, वी हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. कम ऑन, वेयर आर यू? Nitrogen, hydrogen, yes, it's 390, right? So but for suppose if I am talking about forward reaction, so you can see this, I am talking about nitrogen bond is going to be break, and then it is going to like react with hydrogen, और ये bond भी टूटेंगे तीन, and then we have two ammonia molecules to be formed, right? So you all can see this, that for this type you need to break the nitrogen bond, and you need to require 945 energy to break the nitrogen bond, and 3 hydrogen bonds, each is having 436 energy, so 3 into 436 plus 945. So you can see this बच्चों कि आपको ये सारे bonds break करने के लिए 2253 energy required है kilojoules में, ठीक है? And same as it is, just look at over here, this is 1 bond, 2 bond and 3 bonds. So एक molecule में 3 bonds हैं, तो 2 में हो गए 6 bonds, यानी कि you have 6 N2H bonds जो कि form होंगे, each is going to be 390. So 390 into 6 will give you 2340. And if you talk about the difference, so it is going to be 87. You can see this, the energy which is going to be released is always negative, and the energy which is going to be absorbed is always positive. So the difference over here is greater on released side, right? जो energy release हो रही है वो ज्यादा, it means this is overall exothermic reaction, right बच्चों, or not? Yes, sir. Yes, sir. Let's talk about the backward reaction. This is what हमने forward reaction की बात की. चलो अब मैं तुम्हें backward भी दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है ना? अगर हम backward की बात करें, reverse reaction की बात करें, तो it means I am talking about कि आपके पास अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, ठीक है ना? ये ब्रेक होंगे, and they are going to convert back to the nitrogen molecule and 3 hydrogen molecules. So this is reversed reaction. So now this time this is endo and this is exo. So 2340 kilojoules energy is going to be absorbed, and 2253 kilojoules energy released. So it means now this time this is what? Endothermic reaction, right बच्चों? Getting my point? Yes, sir. The thing that I just want to tell you guys, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एक रिएक्शन होता है ना, तो उस रिएक्शन के अंदर एक्सो और एंडो दोनों शामिल होते हैं. जो भी रिएक्शन आपके पास होगा, जाहिर सी बात है, जब आपके पास रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगी ना. तो जब रिएक्टेंट को तोड़ोगे तो दैट मस्ट बी एंडो, ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, और जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगी दैट मस्ट बी एक्सो, तो बॉन्ड मेकिंग. तो बच्चों हर रिएक्शन में एंडो एक्सो पार्ट होता है, हर रिएक्शन में एंडो एक्सो पार्ट होता है, बट जो ज्यादा होता है वो ओवरऑल रिएक्शन होता है. तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड की अगर मैंने बात की तो एक्सो वाला पार्ट ज्यादा था, यानी एनर्जी रिलीज ज्यादा थी, इस वजह से ओवरऑल रिएक्शन एक्सो था. बैकवर्ड की बात की तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ज्यादा थी, इस वजह से ओवरऑल रिएक्शन आपके पास एंडो हो गया. तो एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप उसको किस तरह से डिटेल में ये बात बताओगे? तो फर्स्ट मार्क जो आपको मिलेगा वो तो ये बताने का मिलेगा कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक्चुअल में है क्या. तो आप बताएंगे बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, right? While bond breaking is endothermic. बच्चों ये तो आपने लाजमी लिखना है, ठीक है ना? ये आपने लाजमी लिखना है, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है ना? बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो, ये आप लिखेंगे. हाँ, अगर वो आपसे एक्सो के बारे में पूछता है तो फिर आपका अलग कंक्लूजन होगा, और अगर वो एंडो के बारे में पूछता है तो कंक्लूजन अलग होगा. तो ये सेकंड मार्क आप ये लिखेंगे. फॉर सपोज वो बोल रहा है आप एक्सो डिफाइन करो, तो ऊपर वाला पॉइंट आपने लिखना ही लिखना है लाजमी. नीचे वाला पॉइंट क्या लिखोगे? आप लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड. क्या लिखोगे बच्चों आप? एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर बॉन्ड मेकिंग. एनर्जी रिलीज आफ्टर बॉन्ड मेकिंग इज ग्रेटर. Energy release after bond making is greater than the energy
absorbed. The energy absorbed for bond breaking. तो जो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, इस वजह से ओवरऑल रिएक्शन आपके पास एक्सो हो गया। अगर वो ओवरऑल एंडो के बारे में पूछता तो आप इसका रिवर्स करके लिख देते, आप लिखते एनर्जी एब्जॉर्ब, आप लिखते एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कराई इट इज ग्रेटर, तो आप कह सकते थे ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज, उससे कहीं ज्यादा ये ज्यादा थी एनर्जी रिलीज से ये, ठीक है ना, आफ्टर बॉन्ड मेकिंग। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes. तो सर हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल लाइक इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन व्हिच लाइक वी आर गिवन। No, it's all depending on the energy, right? It's all depending on the bond energy. किस bond की energy ज्यादा है, किसकी कम है, we exactly don't know about this. ये आपको हमेशा given होगा, और इसीलिए मैं एक point यहाँ पर additional लिखवा रहा हूँ that exo और endo not depending on नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बच्चों ये याद रखिएगा, आमतौर पे वो आपको तंग करेगा, तो आप याद रखिएगा ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बट ऑन बॉन्ड एनर्जी। किस पर डिपेंड कर रही है? वो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। देख सकते हो आप, अभी भी देख सकते हो यहाँ पर कि एक तरफ राइट साइड पर आपके पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल थे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास जो है 4 मॉलिक्यूल थे। तो अब उसके बावजूद भी आपके पास राइट हैंड साइड पर सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल थे, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो नंबर ऑफ बॉन्ड से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं एक एमसीक्यूज, क्योंकि वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा और आप फंस जाओगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन टू फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही होगी बच्चों? The total energy of bond formation is greater than the total energy of bond breaking, right or not बच्चों? So the right answer would be A. ठीक है। अच्छा, मैं नंबर ऑफ बॉन्ड वाला आपको एक्चुअल में दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी वो परेशानी हल हो जाए, क्योंकि वो आप लोग गलती उसी में करते हो। तो खुदारा मिल जाओ। ये देखिए, ये रहा 35। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडीन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। What may be deduced from the information? Now you can see this. आमतौर पे बच्चे ये बोलते हैं the number of bond broken, जो number of bond टूटे हैं, this is greater than the number of bond formed. देखो, we are not talking about the bond or the number of bond. This is absolutely wrong. You need to keep remember the energy absorbed to break the bonds is greater, right बच्चों? एनर्जी की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं the total energy of bond formation is less than the bond breaking. This is the right answer. ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट। बच्चों आपके पास ये नहीं है इफेक्टेड नंबर ऑफ बॉन्ड से, बल्कि ये है एनर्जी से। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज आप गलत कर देते हो इसके। ठीक है, Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम sir. टू एनीवन ऑफ यू, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? All clear? No, sir. No, sir.